So मैम आप म्यूट हैं। मैम आप म्यूट है। हाँ ओके ओके, दैट आई फॉरगॉट, मैंने किया नहीं था अपने आप, हो गया शायद। ओके, सो कमिंग बैक टू द, सॉरी वो बीच में इंटरनेट कनेक्शन इंटरप्ट हो गया था। तो यहाँ पे क्या है, रूल्स ऑफ राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। अब ये आपको मैंने रूल्स ऑफ राइटिंग जो केमिकल फॉर्मूला बताया वो सबको क्लियर है ना? यस मैम। क्लियर है, ठीक है। तो आज मैं क्या करूंगी, अभी आपको मैं पीपीटी से क्वेश्चन शेयर नहीं करूंगी, अभी आपको मैं वर्बली क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको समझ में आएगा तो मुझे बताते जाना। मैं आज आपको नहीं बोलूंगी, आपका नेक्स्ट क्लास मेरा वेडनेसडे को, देन आई विल show you the question through the PPT and you will tell me the answer. Okay, and I can also give you, since a formula preparation can be done in the written form, so I can give you the question in the Google Forms also. Google Form में जब आप आंसर लिखोगे, since ये क्या है, MCQ पैटर्न में ओनली नहीं होगा, you can also get to write the formula. तो अगर आपने फॉर्मूला सही से नहीं लिखा है तो गूगल फॉर्म उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. So even if I'm taking the test of formula preparation through Google Form, so beware, write the formulas correctly. ठीक है. So next, हाँ, let me ask one by one. Okay. Ishika. Yes ma'am. What do you understand by polyatomic ions? What do you understand by polyatomic ions? When I am asking the question, आपको जब मैं पढ़ा रही हूँ तब आप वीडियो ऑफ कर रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन when I am asking you the question, please switch on your video. Switch on the video. Miti, good. I can see you. What about others? Only one person is having. Bhumi, good. Ishika, good. Bhavik, done. Good. Only 3 people. Yes, good. Bhavik, Ishika, Bhavya, good, good. Priyansh, good. Okay. Now, Ishika, I was asking you, what are polyatomic ions? Can you tell me what are polyatomic ions? Ishika, what are polyatomic ions? No. Then, Bhumi, can you tell me what are polyatomic ions? Ma'am, when an element comprises more than two elements, when an atom comprises more than two elements. Atom comprises. Atom के अंदर एक से ज्यादा कैसे आएगा एलिमेंट? मैम 2 से ज्यादा होते हैं. सिंपल बोलो ना, आयन में चार्ज रहता है कि नहीं रहता है? मैम आयन में चार्ज रहता है. आयन में चार्ज रहता है ना, तो सिंपल बोलो, ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग चार्ज. ओके, ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग चार्ज. ओके, चार्ज. ओके, नेक्स्ट मीति. मीति, कैन यू टेल मी, मीति कैन यू टेल मी an example of a polyatomic ion? Example of a polyatomic ion.
एनी, नॉट एट अ पर्टिकुलर, आप कुछ भी बता, पॉलीएटॉमिक बता सकते। मैम क्वेश्चन क्या बोले, एक बार बताना तो। गिव एन एग्जांपल ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन। आयरन। Ma'am, can I tell? आयन, ION. Ma'am, can I tell? Harit, is that Harit? Ma'am, No, ma'am. Then Ma'am, Bhavik. हाँ Bhavik, tell. Ma'am, it's ma'am, example, na? Yeah, Ma'am, nitrate ion. yes, correct. NO3 minus, good. Anybody else? और कोई example? मैम सल्फर Sulfur not. Sulfur नहीं. Sulfur और sulfate. मैम कार्बोनेट। सल्फर Carbonate, correct. Good. और मैम फोस्फेट phosphate, good. मैम ऑक्सीजन। Oxygen नहीं. Oxygen is element. यस। Somebody- ammonia. Yes, correct, good. sulfate. Sulfate also correct, good. ये जितने हैं आप बोल रहे हो, हाइड्रोक्साइड है, सल्फेट है, कार्बोनेट है, फॉस्फेट है, डाइकार्बोनेट, HCO3 माइनस, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सारे के सारे क्या है? मैम हाइड्रोक्साइड भी है क्या? हाँ, हाइड्रोक्साइड भी, OH माइनस, वो भी सारे क्या है आपके? यस Ma'am, मैम। chlorate. हाँ, क्लोरेट, ClO3 माइनस, Chlorate. हाँ, ClO3 minus, okay, good. So these are all the example of polyatomic ions. तो एग्जाम में जब आप डेफिनेशन पूछेगा polyatomic का, तो आप बोलोगे group of atom carrying charge is called as polyatomic ion. And example, the list you have given me: carbonate, sulfate, bicarbonate, ammonium, all this, any one you can write depending on the case how much it is asking. Okay, next. And nitrate also. What, which one? Nitrate. Yes, nitrate. Correct. Okay. Now next, Pari, यस मैम can you tell me what do you understand by atomicity? What do you understand by atomicity? मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर Atomicity. Define atomicity. ओके मैम atomicity is the number of atoms in molecule. Atomicity is the number of atoms in a molecule. Correct. Good. Good. Now, Bhumi. मैम मे आई टेल? यस मैम Bhumi, यस मैम tell me the example of a tetraatomic molecule of an element. Tetraatomic molecule of an element. Tetraatomic. मैम मे आई टेल? मैम फॉस्फोरस Yes, correct. Bhavya. मैम ऑक्सीजन। Oxygen diatomic होता है बेटा. Bhavya, give an example of Yes, ma'am. octatomic. Octa means 8. Octatomic molecule of an element. Octatomic molecule of an element. Where he went? Mridul. Ma'am, acid sulfur. S8. Correct. Who said the answer? Ma'am, Aryan. Good. Good. Octatomic molecule, sulfur, S8. Okay. Now, what will be the charge of an element? If the what will be the charge on the of the metal if it is making a formula? Wait, let me. What will be the charge of the element if it is making a compound with carbonate as what is the charge of the metal if it is forming the compound with carbonate as the formula M2CO3? M2CO3. If the formula of the metal with the compound
If the metal is combining with the carbonate and the formula is M2CO3, what will be the charge of the metal? Bhavik? Bhavik, Yes, ma'am. tell me the charge of the metal. Yes, ma'am. Ma'am, ma'am, I didn't know. Anybody Yeah, else want to try? Ma'am, Ma'am, 2. plus Ma'am. minus Ma'am, one. +2. Ma'am, +2. Not Ma'am, plus two. plus 1. Plus Ma'am, one. minus one. Ma'am, No. Metal ma'am, जो होता Aryan. है. Correct. Good. Aryan. Somebody said -1. Ma'am, 2. Sorry. Sorry. Ma'am, Ma'am, minus 2. one. माइनस तो होगा नहीं, 2 भी नहीं होगा, +1 ही सही है, क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ मेटल है, तो मेटल तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही बनाएगा ना. तो मेटल लेते ये तो क्लियर हो गया कि ये 100% की ये पॉजिटिव चार्ज बनाएगा. दूसरी बात, मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर्मूला लिखा है ना M2CO3. तो कार्बोनेट के नीचे, आप कार्बोनेट के बाजू में आपको कोई दिख रहा है क्या, कुछ लिखा है क्या यहाँ 1 2 3 कुछ 2 3 कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा है. यानी कि यहाँ पे क्या है, 1 है. यहाँ पे क्या है, 1 है. और ये 1 किसका चार्ज होगा, मेटल का होगा, क्योंकि जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. एनायन का चार्ज मेटल में जाता है, मेटल का चार्ज एनायन में जाता है कि नहीं, है ना. सॉरी, केटायन और एनायन का चार्ज जो होता है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है. तो एनायन का चार्ज यहाँ पे जो है वो 1 है, यानी कि वो क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद आया है. वो किसका चार्ज रहा होगा, मेटल का चार्ज रहा होगा. 2 यहाँ पे लिखा है, मतलब ये एनायन का चार्ज रहा होगा, तभी वो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मेटल के पास आया है. दैट मीन्स यहाँ पे जो मेटल है उसका चार्ज है +1. अब दूसरी बात, आप बोलोगे मैडम आपको कैसे पता चला ये मेटल है, तो जो पहले लिखा रहता है वो बेसिकली क्या होता है, मेटल. क्योंकि फॉर्मूला लिखने का रूल ये बोलता है कि आपको केटायन पहले लिखना है फिर एनायन लिखना है. तो जो पहले लिखा रहता है वो केटायन. इज इट क्लियर? ओके. One more Yes, example ma'am. I am Yes, giving. Yes, one more example I am giving you. Tell me. Tell me what is the charge of? आज सुबह लेके गया था पर वहीं पे रुक गई. Who is telling that? How? Ma'am, Okay. Bhavik. Anybody wants to tell the answer? Krishika? Krishika? Yes, ma'am. Krishika, tell me the answer. Yes, ma'am. What is the charge of the cation and anion here? मैम मेरे को आयन का पता है. Krishika, can you tell me? Ma'am, may I tell? Tell. Is it Krishika? मैम non-zero. Bhumi. Bhumi. Okay. Non-zero क्या May I होता है tell, बेटा? ma'am? Tell. May I tell, ma'am? Ma'am, हाँ बोलो Ma'am, बेटा. केटाइन का +1 हाँ. और ये और SO4 का -2. यस. तो आपको बस ये चार्ज देके फॉर्मूला देके पता लगा सकते हो ना, जो आप करेक्ट है. जो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने चैट में रिप्लाई किया बेटा, आप लोग लेकिन ये नहीं स्पेसिफाई किए कि वो किसका चार्ज है, केटायन का कि एनायन का. दर्शना, you told me the answer but you didn't specify whose charge is that. Okay, same case is of Ishika also. Okay, so ये अमोनियम का चार्ज है +1 और सल्फेट का चार्ज है -2. Okay, so this way you can get out the formula of the any cation or anion from the
फ्रॉम द फॉर्मूलाज। ओके, आपको फॉर्मूला दिया रहेगा, उससे भी आपको पता लगा। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और इलेबोरेट कर रही हूँ। ओके, अब मैं आपको बोल रही हूँ, एन एलिमेंट इज अ फॉर्मूला इज गिवन टू यू वेयर द फॉर्मूला इज MsO4. Make the फॉर्मूला में ऑफ दिस पर्टिकुलर, ये जो मेटल है इसका फॉर्मूला बनाओ आप क्लोराइड के साथ। ये एक फॉर्मूला दिया गया है एक मेटल का, द कंपाउंड फॉर्मूला इज गिवन एज MsO4. मेक द फॉर्मूला ऑफ द सेम मेटल विथ क्लोराइड। मेक द फॉर्मूला ऑफ द सेम मेटल विथ क्लोराइड। दिव्या, are you there? Yes, sir. Can you tell me the formula of the same metal with chloride? Don't know, ma'am. Bhumi, no. Anybody? Harit? Yes, ma'am. Tell me what will be the formula of the same metal with chloride ion? I don't know. अरे बेटा, मैंने आपको सल्फेट का चार्ज सबको पता है, आप लोग गलती कैसे कर रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा। जो लोगों ने मुझे आंसर दिया उनमें छोटी सी मिस्टेक कैसे हो रही है आप लोगों। अब ये सल्फेट का चार्ज सबको पता है, कितना होता है सल्फेट का चार्ज? मैम MCl2. यस, MCl2। सल्फेट का चार्ज कितना है? व्हाट इज द चार्ज ऑफ द सल्फेट? -2. -2। अब यहाँ पे लेकिन आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तो कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब ये जो 2 जो है वो बैलेंस हो गया होगा, ठीक है? बैलेंस होने के बाद ही तभी आपको मतलब प्रोपोर्शन में कैंसल आउट हो गया, तभी तो आपको सल्फेट के आजू बाजू भी कोई 2 नहीं दिख रहा है, मेटल के आजू बाजू भी 2 नहीं दिख रहा है, ठीक है? नॉर्मल से लॉजिक है, सल्फेट का चार्ज अगर 2 है तो यहाँ पे 2 लगना चाहिए, ठीक है? लेकिन यहाँ पे 2 नहीं आया है, मतलब यहाँ पे ये जो चार्ज है, ये जो 2 है वो बैलेंस हो गया होगा या कैंसल आउट होगा। कैंसल आउट कब होगा? जब मेटल का भी चार्ज क्या रहा होगा? 2। तो यानी यहाँ मेटल का चार्ज भी 2 है और सल्फेट का चार्ज भी 2 है। तो मैंने आपको बोला अब आप इसी मेटल का फॉर्मूला बनाइए क्लोराइड के साथ, है ना? तो मेटल का चार्ज है 2, क्लोराइड का 1, तो व्हेन यू विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इट इज MCl2। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Is it clear? Yes. Yes, ma'am. Okay. So this is the way. Yes, ma'am. This is the way you have to do. And in the next class, I will be focusing on this only. तो next class में आप इस ions वगैरह को पढ़ के आना अच्छे से। अभी जितना आज पढ़ाया मैंने, जिस तरीके से आपको पढ़ाया, Yes, ma'am. उसको पूरा करके आओगे, ठीक है? Is it clear to everyone? Reply तो करो भाई। Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. So Wednesday we will have a ma'am. test on this. Okay, so I'm ending my class here. मैंने extra time ले लिया आपका, 9:40 हो गया. Okay, is it clear? So Yes, I'm ma'am. ending my class here. Yes, ma'am. Bye, Okay. ma'am. Bye. Good day, all of you. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. So here in this, you can see the slide now, na? No. Not started sharing. Okay, now you can see the slides, isn't that? Yes, ma'am. Okay, so अब यहाँ से आपको क्या पूछा जाएगा? First, let me tell you what type of questions can be asked and what type of preparation you have to do. Okay, so first thing you will cover the definition part. Definition part means what is atomicity, what are molecules. Okay, but these are the definition. What are polyatomic ion? These are the basic definition which is related to atomicity, ions and formula preparation topic. ठीक है, समझ में आया? आपको बेसिक डेफिनेशन पहले कवर करना है कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एटॉमिसिटी क्या होती है, पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, और उनके एक दो या तीन एग्जांपल, मिनिमम 3 एग्जांपल याद करके रखना। ये 3 डेफिनेशंस हो गए, ठीक है? पहले ये डेफिनेशन आप कर लेना। इसके बाद आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से और कुछ भी आते हैं,
सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। और दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर आयन। आपको एक एग्जांपल दे देगा और बोलेगा इसकी एटॉमिसिटी क्या है, या फिर आपको बोल देगा कि एक ऐसे आयन का एग्जांपल लिखो या फिर एक ऐसे मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिखो जिसकी एटॉमिसिटी 3 है। ऐसा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Okay, so this particular way you have to prepare, then you will directly go to the formula preparation. formula preparation करने के लिए आपको आयंस का सिंबल पता होना चाहिए। जब तक आपको आयंस का सिंबल पता नहीं होगा आप फॉर्मूला प्रिपरेशन नहीं कर सकते। okay, you can't do that. So first we will focus on the molecules part. Let me start where it is. So here we start the molecule. Molecules और atoms का बीच का डिफरेंस क्या होता है? एटम्स जो है वो कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली एक्सिस्ट करते हैं नेचर में, जबकि एटम्स जो है वो इंडिपेंडेंटली एक्सिस्ट नहीं कर सकते नेचर में। दे कांट सर्वाइव। दैट्स व्हाई दे आर आइदर फॉर्मिंग मॉलिक्यूल और दे आर फॉर्मिंग आयंस। तो हमको पहले क्या देखना है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है। तो इट इज एक्चुअली द एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ molecule. Okay, so you can see here a molecule is a collection of various atoms that chemically combine with each other. So this is the basic standard definition of a molecule. जब different types of atoms जो है वो chemically combine होके that they are forming a molecules. Okay, so यहाँ पे ये भी हो सकता है कि molecule बनाने के लिए आपका same atom भी include हो सकता है, different atom भी include। Like if I am telling about you O2, oxygen molecules, those what happened? दादा नहीं ना बोलना ना दादा जुड़ा दो खाली मेरे को बोलना है कोई को मुझे तो बोला मम्मी इसका कुछ नहीं आता है ना अंग्रेजी इसको भी। Okay, so what it is, molecules जो होते हैं वो similar atoms के भी बन सकते हैं, different atoms के भी बन सकते हैं। Okay, like if I am giving you example of oxygen molecule O2, okay, that means उसमें दो oxygen atom है, similar atoms है, वो क्या हो गया, molecule containing similar atom, but molecule can also be containing different atoms. Like if I am talking about CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन एटम है, तो ये क्या हो गया, molecules containing different atoms. Okay, so this way molecule can be containing of a similar atoms also. It can also have different atoms also. Is it clear? आज समझ में आया ना this one? Is it clear to everyone? Give response. Yes, ma'am. Okay, तो basic definition molecule का समझ में आ गया और ये मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं ये भी समझ में आ गया। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल आएगा तो आप लिख सकते हो। ठीक, अब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट आपने बेसिक स्टार्टिंग में पढ़ा है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स का डिफरेंस है ना, पढ़े हो ना एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। Yes, ma'am. तो एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सिमिलर एटम से बनते हैं और कंपाउंड्स के एटम जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के एटम्स। जैसे कि मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, उसका जब मॉलिक्यूल बनेगा तो दो ऑक्सीजन एटम आ रहे तो सिमिलर एटम होता है, लेकिन जब एक कंपाउंड बनाएंगे, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं या वाटर की बात करते हैं, ये सारे क्या है, कंपाउंड है, इनका जब मॉलिक्यूल बनेगा तो डिफरेंट एटम आएंगे। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स का डेफिनेशन, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स का डेफिनेशन, तो आप क्या लिखोगे, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम व्हिच आर केमिकली कंबाइंड। लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, देन यू कैन टेल दैट atoms of different elements chemically combine to form a molecule. Is it clear to everyone? Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मॉलिक्यूल्स क्लियर हो गया। अब इसकी बात आती है एटॉमिसिटी। मैंने आपको एक डेफिनेशन बोला, मॉलिक्यूल्स के बाद आपको एटॉमिसिटी का डेफिनेशन याद रखना है और उसके एग्जांपल कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला तो एक डेफिनेशन ही हो जाता है कि व्हाट इज एटॉमिसिटी। ओके, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स है वो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कहलाती है। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ एलिमेंट और अ कंपाउंड, इट इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी। The number of atoms in a molecule of element is called as atomicity. Is it clear? तो जैसे आप मोनोएटॉमिक की Yes, ma'am.
तो जैसे कुछ जितने भी मेटल्स होते हैं वो मोनो एटॉमिक आएंगे, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारे के सारे क्या मोनो एटॉमिक, यानी इनके मॉलिक्यूल में सिर्फ एक एटम आएगा। डाई एटॉमिक की बात करें तो O2 ऑक्सीजन और O2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो जितने मैक्सिमम जितने गैसेस आपको मिल रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, डाई एटॉमिक। चाहे आप नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, फ्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, ये सारे के सारे क्या डाई एटॉमिक है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि ओजोन जो होता है O3, जो वो क्या होता है, ट्राई एटॉमिक। अब सपोज मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन, आपको क्या बोलना है, 3, इट्स ट्राई एटॉमिक। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल दो, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन हो गया। दैट मींस यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ ओजोन। इज इट क्लियर? Then tetraatomic, that means it is having 4 atoms in the molecule like your phosphorus. Polyatomic, that means it is having more than 4 like your sulfur. Sulfur is having 8 atoms in a molecule. 8 atoms. Yes. And more than 2. More than 2, yeah. You can get polyatomic में बहुत सारे होते हैं, जैसे आपका P4 हो गया, S8 हो गया, तो ये सारे polyatomic। लेकिन अगर उसको स्पेसिफाई कर दिया tetraatomic, तो आप दे देना P4। ठीक है, तो ये हो गया आपका एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी के बाद आता है आपका, ये कुछ एलिमेंट्स है जिनकी एटॉमिसिटी आपका ये एनसीईआरटी में दिया था। ओके, जैसे अब जैसे मेटल सारे मोनोएटॉमिक होते हैं, वैसे नॉन मेटल मोनोएटॉमिक नहीं होते, डिपेंड करता है कि वो क्या है। जैसे कि अगर नोबल गैस हो गया, जैसे नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब क्या है, मोनोएटॉमिक होगा। लेकिन जितने गैस जैसे आ रहे हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सारे के सारे क्या है, डाईएटॉमिक। फॉस्फोरस टेट्राएटॉमिक है और सल्फर पॉलीएटॉमिक है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट केमिकली कंबाइन टू फॉर्म अ molecule and they are combining in a fixed proportion. They are combining in a fixed proportion. So these are the various examples of the molecules of a compound. Done. Now next is the ions. Okay, ions जो होते हैं, these what are the ions? Ions are the charged particles. Ions are the charged particles. They are either formed by the loss of electron or the gain of electron. तो कौन कौन एनायन बनाता है, कौन केटायन बनाता है? तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि केटायन और एनायन क्या होता है। केटायन मींस कैरिंग पॉजिटिव चार्ज और एनायन मींस कैरिंग नेगेटिवली चार्ज। यू कैन सी हियर, okay, anion is carrying negatively charged and cation is carrying positive charge. Anion is carrying negative charge and cation is carrying positive charge. Okay, anion is carrying negative charge and cation is carrying positively charged. So these ions are these are the ions. अब ये ions कौन बनाता है, कैसे बनाता है? तो एनायन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है कोई एलिमेंट तब बनता है, और केटायन जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तब बनता है। ठीक है, इज इट क्लियर अप टू हियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब एनायंस जो है वो नॉन मेटल्स बनाते हैं और केटायन जो है वो मेटल्स बनाते हैं। इस बात को याद रखना। एनायन कौन फॉर्म करता है, नॉन मेटल्स, और केटायन कौन फॉर्म करता है, मेटल्स। ठीक है, अब ये आयंस जो होते हैं वो एक सिंगल एटम वाले आयन भी हो सकते हैं और एक ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग चार्ज भी हो सकते हैं। And if the group of atom is carrying charge, they are called as polyatomic ion. This is the another definition which I asked. The group of atom carrying a charge is called as polyatomic ion. Okay, is it clear? अब ये polyatomic ions के example आपके हो गए, जैसे phosphate हो गया, Yes, ma'am. Clear. phosphate है, carbonate है, sulfate है. These are all the example of what polyatomic ions. Is it done? No. फॉर्मूला प्रिपरेशन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला बनाने के लिए व्हाट इट इज देयर, यू हैव टू, फॉर्मूला बनाने के लिए आपको बेसिकली दो चीज की जरूरत होती है मेन, एक तो सिंबल, दूसरा वैलेंसी। अगर आप सिंबल पता करेक्टली लिखोगे तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। ऐसे ही वैलेंसी अगर आप गलत लिखोगे तो आपका प्रपोर्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। प्रपोर्शन रहता है ना कंपाउंड में, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो पहले हमको सिंबल पता होना चाहिए और वैलेंसी पता होनी चाहिए। ठीक है, और वैलेंसी क्या होता है, इट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। ये चीज आपको मैं
पहले ही बता चुकी जब आपको प्रीवियस पार्ट करा रही थी मास नंबर, एटॉमिक नंबर वगैरह, कि वो क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स होता है। ठीक है, अब ये आयंस का लिस्ट है। ये आयंस की मुझे पता है आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने प्रिपेयर नहीं किया है, बट इसमें से आप याद कर लो, ये आपको अभी चाहिए आयन फॉर्मूला प्रिपरेशन के लिए। तो जैसे जैसे कुछ हाईलाइटेड पार्ट होते हैं, जैसे कि बाइकार्बोनेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, है ना, सल्फेट हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, तो इनको तो आपको भूलना ही नहीं। ठीक है, जैसे ये हाईलाइटेड वाला बता रही हूँ ना, जैसे ये फॉस्फेट है, सल्फेट है, बाइकार्बोनेट है, कार्बोनेट है ना, नाइट्रेट हो गया और अमोनियम हो गया। तो ऐसे कुछ हाईलाइटेड पार्ट रहते हैं, इनको आपको भूलना ही नहीं है। यू डोंट हैव टू फॉरगेट दिस बिकॉज दिस आर द इम्पोर्टेंट और continuously asked ions. Okay, these are the important one and continuously asked ions, and here in the same is the case of your what cations also. Okay, रूल्स ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको किसी भी एलिमेंट को, आप जब भी किसी एलिमेंट को लिखोगे, तो जैसे आपको कोई एलिमेंट का फॉर्मूला कंपाउंड का फॉर्मूला पूछ लिया है, ओके, इफ एनी कंपाउंड फॉर्मूला इज आस्क्ड, तो सबसे पहले आपको, जैसे मैंने आपको बोला कॉपर 2 सल्फेट, क्या बोला मैंने, कॉपर 2 सल्फेट, मैम क्या बोले, एक बार फिर से बोलना तो मैम। क्या चीज बना के लिए, मैं अभी क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे आएगा। ठीक है, यस मैम। अभी कॉपर Yes, ma'am. 2 सल्फेट है, तो मैंने आपको पहले आपको क्या बोलना है, सिंबल पता रहना चाहिए। तो कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu, सल्फेट का सिंबल क्या होता है, SO4। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, आपको इसकी वैलेंसी नीचे लिखनी है। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका जो रहता है एक से ज्यादा वैलेंसी होती है, और उन एलिमेंट्स की वैलेंसी आपको यहाँ रोमन न्यूमरल, जैसे यहाँ पे लिखा है ना 2 ब्रैकेट के अंदर, वैसे आपको दी जाएगी। यहाँ पे 2 लिखा है कॉपर का, मतलब यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी क्या है, 2 है। सल्फेट की वैलेंसी होती है SO4 2 माइनस होता है, यानी इसका वैलेंसी क्या है, 2 है। ठीक है, कॉपर का चार्ज है +2, सल्फेट का चार्ज है -2। अब इसको आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये Cu2SO4 ट्वाइस हो गया, Cu2SO4 ट्वाइस। अब आप देखो ये रेशियो जो है, ये कैटायन और एनायन, ये तो कैटायन है, ये एनायन है, ये रेशियो सिंप्लीफाई हो सकता है, क्योंकि ये रेशियो क्या है, 2:2। तो हम इसको वापस सिंप्लीफाई करके क्या लिख देंगे, CuSO4। इज इट क्लियर? Is it clear? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Similar way, you can write of calcium hydroxide. Okay, calcium hydroxide. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, कैल्शियम लिख दिया आपने, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, इसका होता है -1 और इसका होता है +2। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, CaOH ब्रैकेट डाल, जब भी किसी पॉलीएटॉमिक आयन को हम लिखते हैं तो हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। ये पॉलीएटॉमिक आयन है हाइड्रोक्साइड, इसलिए हमने उसको ब्रैकेट में लिखा है। ओके, CaOH ट्वाइस। ओके, तो CaOH ट्वाइस हो गया। सो दिस वे यू कैन, अब ये रेशियो जो है वो सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकता, 1:2 है, रेशियो सिंप्लीफाई होगा नहीं, सो दैट मीन्स वी हैव टू लीव इट हियर। अप टू हियर इज इट ओके? Is it clear? Is it clear to everyone?